I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple, where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town in the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. But many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. मुझे एक कहानी याद है जो एक बार उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के रूप में वो एक पुराने मंदिर के पास स्कूल जाता था, जहां उसके पिता एक पुजारी थे। वो कुछ देर के लिए मंदिर में रुकते थे और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करते थे। 30 साल बाद मैंने अपने शहर और मंदिर का दौरा किया, जो अब वीरानी की हवा में डूब गया था। पिछवाड़े में, जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। सांवली वर्दी पहने एक युवा लड़का, मोजे और जूते पहने हुए, पुताई करने आया और अपना स्कूल बैग एक तह बिस्तर पर फेंक दिया। लड़के को देखते हुए एक और लड़के ने देवी से की गई प्रार्थना को याद किया। जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिले, मुझे उन्हें कभी नहीं खोने दो, देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। युवा लड़के पुजारी के बेटे को पसंद करते हैं, अब जूते पहनते हैं। लेकिन मेरे आस पड़ोस के कूड़ा बीनने वाले जैसे कई लोग बेपरवाह रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Saheb's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, lie 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child it is even more. नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय मुझे सीमापुरी की ओर ले जाता है, जो दिल्ली की परिधि पर एक जगह है, फिर भी उससे मीलों दूर, लाक्षणिक रूप से। यहाँ रहने वाले वे लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। उनमें साहिब का परिवार भी शामिल है। सीमापुरी तब एक जंगल था, यह अभी भी है, लेकिन यह अब खाली नहीं है। मिट्टी की संरचनाओं में टिन और तिरपाल की छतों के साथ सीवेज, जल निकासी या बहते पानी से रहित 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। वे बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के, लेकिन राशन कार्ड के साथ 30 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करते हैं और उन्हें अनाज खरीदने में सक्षम बनाते हैं। एक पहचान से ज़्यादा जीवित रहने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं और पेट में दर्द के बिना बिस्तर पर जा सकते हैं, तो हम यहाँ उन खेतों में रहना पसंद करेंगे जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया। फटी हुई साड़ियों में महिलाओं के एक समूह का कहना है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपना पेट क्यों छोड़ा, ग्रीन फील्ड्स और नदियों की खूबसूरत भूमि। उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता है, वे अपना तंबू गाड़ देते हैं जो पारगमन गृह बन जाते हैं। बच्चे उनमें बड़े होते हैं, अस्तित्व में भागीदार बनते हैं, और सीमापुरी कूड़ा बीनने में जीवित रहना
वर्षों से इसने ललित कला के अनुपात को हासिल कर लिया है। उनके लिए कचरा सोना है। यह उनकी दैनिक रोटी है। उनके सिर पर छत है, भले ही वो टपकता हुआ छत हो। लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी अधिक है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Saab says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. मुझे कभी कभी 1 रुपया, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, साहिब कहते हैं। उनकी आंखें चमक उठती हैं। जब आप कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का पा सकते हैं तो आप छानबीन करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि और अधिक मिलने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके माता पिता से अलग अर्थ होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए यह जीवित रहने का साधन है। The elders it is a means of survival. One winter morning I see Saab standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men, dressed in white, playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. वो बुढ़ापा जीवित रहने का एक साधन है। एक सर्दियों की सुबह मैं साहिब को पड़ोस के क्लब के बाड़े के पास खड़ा देखता हूँ। 2 युवाओं को सफ़ेद कपड़े पहने टेनिस खेल रहा है। मुझे खेल पसंद है। हम्स इसे बाड़ के पीछे खड़े देखने के लिए सामग्री। मैं अंदर जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता है, वह स्वीकार करता है। द्वारपाल मुझे झूले का उपयोग करने देता है। Saab too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हैं जो उनकी फीकी हुई शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब लग रहे हैं। किसी ने उन्हें मुझे दिया, वो व्याख्या के तरीके से कहता है। तथ्य यह है कि वे किसी अमीर लड़के के जूतों को छोड़ देते हैं, जिसने शायद उनमें से एक में छेद के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया, उसे परेशान नहीं करता है। जो नंगे पैर चलता है, उसके लिए जूते भी एक सपने के सच होने जैसा है। लेकिन जिस खेल को वो ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। This morning, Saab is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees in all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Saab is no longer his own master. आज सुबह साहिब दूध बूथ के रास्ते में है। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। मैं अब सड़क के नीचे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, वो दूरी की ओर इशारा करते हुए कहता है। मुझे 800 रुपये और मेरे पूरे भोजन का भुगतान किया जाता है। क्या उसे नौकरी पसंद है? पूछता हूँ। उसका चेहरा, मैं देख रहा हूँ, लापरवाह रूप खो चुका है। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी लगता है जिसे वो अपने कंधे पर इतना हल्का ले जाता था। बैग उसका था। कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब अपने मालिक नहीं रहे। हमारे चैनल होप एजुकेशन हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।